हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ करियर बिल्डर अकैडमी की ऑनलाइन क्लासिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ स्वस्थ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ अपने कल वाले टॉपिक के अंदर जिथे आपने स्किप करा सी उस तो नैक्सट आप कंटिन्यू नैक्सट करते हाँ। तो चलते हैं आप अपने क्लास के वाल। तो तुसी अपने जिन्ने भी डाउट्स हो या जो भी थोड़े क्वेश्चन हो तो उन्होंने तुसी कमेंट दे विच मैंशन कर दिया करो। तो नैक्सट क्लास के अंदर जो आप उन्होंने सोल्व कर लिया करांगे। तुहानूं जिथे भी क्वेश्चन मिले जिन्ना भी टॉपिक हुंदा उस टॉपिक के क्वेश्चन जिहड़े हैं वो तुसी ग्रुप कमेंट दे विच लिख दिया करो। तो आप नैक्सट जी क्लास होया करेगी ना आप उस अंदर उन्होंने सोल्व कर लिया करांगे। तो आप चलते अगे थोड़ा जिहा कल दा आपां रिवाइज करते हैं ठीक है। उस तो पहला एक क्वेश्चन है थोड़े लिए जिसका आंसर तुसी कमेंट दे विच देना और उसका आंसर तुहानूं कल दी क्लास दे विच मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है भारत दा सब तो अखीरला बनन वाला राज केड़ा है। राज केड़ा है। बड़े ईमानदारी दे नाल तुसी इसदा आंसर जिहड़ा कमेंट सैक्शन के अंदर अपलोड करना है। तो इसकी ऑप्शन दे दिंदा मैं, चलो ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, एंड सी ऑप्शन है अपने को दादरा एंड नगर हवेली। एक मिनट, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये सारा इकट्ठा मर्ज होया कल मैं करवा के आया सी तुहानूं दमन एंड दीव, तो डी ऑप्शन तुहाडे कोल तेलंगाना। इसका आंसर तुसी कमेंट दे विच लिख के सेंड करो तो कल दी क्लास के अंदर थोनों इसका जिहड़ा है आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है सब स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना तो नोट कर लो। नैक्सट आप जिहड़ा है चलते हैं अपनी क्लास के वाल। चलते आप देखो थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो भारत अते संसार आपने देखिया सीगा जो अपना भारत है वो किस महादीप दे विच है। तो भारत अपना एशिया महादीप दे विच है। एशिया महादीप दे विच है भारत अपना एशिया महादीप दे विच स्थित है। एशिया महादीप दे एक मिनट, एशिया महादीप दे दक्षिण विच स्थित है। एशिया महादीप दे दक्षिण विच स्थित है। दक्षिण विच स्थित है जो अपना
ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਏਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਖਣ, ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਥਾਨ ਉਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਰਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ। ਤਾਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਔਰ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਈਨਾ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ USA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ USA, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਸ਼ੀਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਈਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ ਨੈਕਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪੂਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, 7th ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ 7th ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 10th ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਰੇ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਚਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਪਤਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ ਸਭ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ। ਵੇਟ ਮੈਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, फर्स्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड, फोर्थ यूएसए, फिफ्थ ऑस्ट्रेलिया, सिक्स्थ, इंडिया 7, अर्जेंटीना 8 और ए 9 और ये अपने को 10। ठीक है, इसनों तुसी नोट कर लो ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵੱਲ। ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, केवल अपने उत्तर है इंडिया के उत्तर दे विच अपने को एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अपने को लद्दाख। लद्दाख बिल्कुल दखन दे विच, इत्थे अपने को दखन दे विच एक राज प्रेजेंट है, ये अपने को सीगा केंद्र शासित प्रदेश। ये अपने को है राज, एक स्टेट, राज एक स्टेट जिसका नाम है अपने को तमिलनाडु। तमिलनाडु
TN ਦਾ मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु। नैक्सट अपन ने देखा जो आप पूर्व दे विच अपने, एक मिनट मार्कर चेंज करदा मैं, जो अपने बिल्कुल ये पूर्व दे विच आप चले, ये पूर्व दे विच, ये बिल्कुल पूर्व दे विच आप पहुँच गए। तो जो पूर्व दे विच वो अपने कोल है अरुणाचल, AR अरुणाचल, P पर प्रदेश पूर्व। और जेकर आप पश्चिम वाल आउंदे आ, पश्चिम वाल आउंदे आ तो इत्थे आपां नूं जो स्टेट मिलती है, जो राज मिलता है वो है अपने कोल गुजरात, गुजरात। तो अपन ने देखा कि भारत का सब तो उत्तरी उत्तरी खेतर या उत्तरी जो जमीन है, जो लैंड है, लद्दाख, लद्दाख उत्तरी खेतर लद्दाख। नैक्सट दक्षिणी खेतर, दक्षिणी अपने को मिला तमिलनाडु, तमिलनाडु। और अपने देखा कि अपने को पूर्वी या अपने को ईस्ट, ईस्ट के अंदर किहड़ी स्टेट मिली सी आपां नूं? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अपन देखा वैस्ट या फिर पश्चिम के अंदर आपां नूं किहड़ी स्टेट मिली सी भारत के? तो पश्चिम के अंदर मिला सी आपां नूं गुजरात, पश्चिम के अंदर मिला सीगा गुजरात। ये सिंपल एक क्वेश्चन आता है सिंपल पेपर के अंदर, वधिया पेपर के छोटे पेपर के अंदर, कि भारत का सब तो पूर्वी राज किहड़ा है? तो पूर्वी राज आपां नूं किहड़ा मिल जाएगा बई? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सब तो दक्षिणी राज किहड़ा है? इत्थे अपने को केरला, इत्थे खत्म होंदा केरला अपने को। तो केरला के बिल्कुल नीचे जो दक्षिण वाला पार्ट दिखता, किसका दिखता अपने को? तमिलनाडु का। तो जो अपने को बिल्कुल दक्षिणी राज है तो तमिलनाडु। ये दो अपने जिहड़े इंपोर्टेंट होंगे। नैक्सट चलते हैं, इत्थे ध्यान नाल देखियो, जिहड़ा अपने को उत्तर दे विच लद्दाख मिल रहा है बई, लद्दाख तो ये इत्थे तक, लद्दाख तो अपने को इत्थे तक है सारा, लद्दाख इत्थे तक। पर जिथे लद्दाख खत्म हो रहा है, यानी कि पूरा पूरा इंडिया इत्थे खत्म हो रहा है, ऊपर अपने को चाइना शुरू हो रहा है, जिथे आप भारत खत्म हो रहा है उत्थे कोई ना कोई इंडिया का स्थान होगा। बई जिहड़ा इत्थे लद्दाख दे विच इंडिया का स्थान होगा, उस स्थान का नाम है इंदिरा, नोट कर लो इसनूं, इंदिरा काल, इंदिरा काल, इंदिरा काल। तो इंदिरा काल की है? इंदिरा काल की है? इंदिरा काल भारत का सब तो उत्तरी बिंदु है। की है? सब तो उत्तरी बिंदु कित्थे स्थित है? तो लद्दाख दे विच स्थित है, लद्दाख दे विच। देखो ये जिहड़ा काल हुंदा ना, काल जियोग्राफी दे विच, जियोग्राफी दे विच आपां देखदे हां कि जिहड़ी इदां दी शेप बनदी ना, इस तरह की शेप, इस तरह शेप, उसनूं काल बोलिया जाता है। इसलिए अपने को ये शेप तुसीं देखा, ये देखोगे ना, ये भी इदां ही सेम कुछ लमसम बन रही है, तो इसलिए इसनूं काल बोलिया गया। पर इंदिरा गांधी अपने जो अपने प्राइम मिनिस्टर सी फस्ट वूमन, तो उन्होंने एक रिस्पैक्ट देने के लिए इन्होंने किहड़ा बोलिया गया सीगा? इंदिरा कौल स्थान का नाम। नैक्सट चलते हैं, भारत का दक्षिणी राज तो तमिलनाडु है, दक्षिणी राज तमिलनाडु है, दक्षिणी राज। पर बई दक्षिणी पॉइंट भी तो है ना जिथे खत्म हो रहा है तमिलनाडु, नीचे अपने को महासागर शुरू हो रहा है, हिंद महासागर। तो इस पॉइंट का नाम की है? जो भारत की मुख्य भूमि के विच दक्षिण वाला पॉइंट है, तो उसका पॉइंट का नाम है अपने को कन्याकुमारी। ये सबनों पता होगा वैसे, चलो ठीक है, सैकेंड नाम दस दिया जिहड़ा एग्जाम दे विच आवेगा, कन्याकुमारी, कन्या, एक मिनट, कुमारी, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का जो सैकेंड नाम है, जो तुहानूं किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, तो अज सबनों पता चल जाएगा जिहड़े जिहड़े लैक्चर सुनांगे। उसका नाम है केप कैमोरिन, केप कैमोरिन। केप कैमोरिन, RIN, केप कैमोरिन, केप कैमोरिन। देखो अपने पढ़िया सीगा, एक मैं तुहानूं दिखाऊंगा, ये अपने देखा सीगा, ये अपने को अफ्रीका के नीचे वाला सिस्टम बनने से इस तरह, इस तरह। तो आप बोलते होंगे सी कि वास्को डी गामा भारत वाल केप ऑफ गुड होप दे हुंदे भारत आया। ये बोली केप ऑफ गुड होप दे हुंदे होए कित्थे पहुंचा सीगा? भारत के केरल विच। अब बोलते हैं ना आप इत्थे केप ऑफ गुड होप,
ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੇਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਪ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਪ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕੇਪ ਕੈਮਰਿਨ, ਕੇਪ ਕੈਮਰਿਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਿਓ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਟ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਵੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਬਿੰਦੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਬਿੰਦੂ ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ, ਮਾਰਕਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਕਬੀਥੂ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਬੀਥੂ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਬੀਥੂ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬੀਥੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਕਬੀਥੂ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਬਿੰਦੂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਬਿੰਦੂ। ਤਾਂ ਕਬੀਥੂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬੀਥੂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਬੀਥੂ ਹੈ। ਕਬੀਥੂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬੀਥੂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬਿੰਦੂ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਦੱਖਣੀ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਵਾਰ ਮੋਤੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗਵਾਰ ਮੋਤੀ, ਗਵਾਰ ਮੋਤੀ। ठीक है, गवार माता मिल जाएगा, ठीक है, गवार मोता मिल जाएगा, गवार मोती मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं लानी, सेम नाम है। तो गवार मोती जो है की है, भारत का सब तो पूर्वी स्थान है, पश्चिमी स्थान, भारत का सब तो पश्चिमी स्थान है। और किस राज दे विच स्थित है, तो गुजरात दे विच स्थित है। इधर सारे ध्यान नाल देखो ब्रदर, देखो ये पॉइंट का नाम अपने को, ये पॉइंट का नाम अपने को आप हुणे करा गवार मोती, और इस पॉइंट का नाम अपने को कबीथू, इस पॉइंट का नाम अपने को कबीथू। ਇਹਦਾ मतलब गवार मोती तो लैके कबीथू तक, गवार मोती तो लैके कबीथू तक जो भारत की दूरी है, जो भारत की लंबाई है, तो कितनी लंबाई है, 2933 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 2933 किलोमीटर। किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤਾਂ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬਿੰਦੂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਬਿੰਦੂ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਪੂਰਬੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਦੂਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬਈ, 2900, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। नैक्सट यही क्वेश्चन किद्दां बन जाएगा, गुजरात तो लैके अरुणाचल प्रदेश तक दूरी तो 2933 किलोमीटर, गवार मोती तो कबीथू तक की दूरी कितनी, 2933 किलोमीटर। नैक्सट बन जाएगा भारत के पश्चिमी बिंदु तो भारत के पूर्वी बिंदु तक की दूरी कितनी, 2900 किलोमीटर। देखो तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो तीन तरह के ही हो गए। एक क्वेश्चन होर बनेगा, वो जब मैं थोड़ा ये लॉन्गीट्यूड एंड लैटीट्यूड करवा रहा होगा ना, उस टाइम पर दसागा। ठीक है, नैक्सट देखो, तो भारत के इस अपने को दूरी, इसको नोट कर लो, फिर आप अगे चलते हैं। ठीक है, आप अगे चलते हैं। तो भारत के ये अपने को इंदिरा कौर, इंदिरा कौर, और ये अपने को कन्या कुमारी,
कन्याकुमारी, कुमारी नहीं कन्याकुमारी। तो कभी इंदिरा काल तो मार्कर चेंज कर देगा, इंदिरा काल तो कन्याकुमारी तक, इंदिरा काल तो कन्याकुमारी तक की जो दूरी है, इंदिरा काल तो कन्याकुमारी तक की जो दूरी है, तो ये दूरी है ये अपने को कितनी है, तो ये अपने को है 3200, दिख नहीं रहा होना, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर सेम बन जाएगा क्वेश्चन 3214 किलोमीटर कि भारत के उत्तर तो भारत के दक्षिण तक की दूरी, भारत के उत्तर तो भारत के दक्षिण तक की दूरी तो अपने कितनी बन जाएगी 3214, उत्तर तो दक्षिण तक की दूरी 3214 किलोमीटर। भारत के इंदिरा काल तो कन्याकुमारी तक की दूरी तो 3214 किलोमीटर। लद्दाख तो तमिलनाडु तक की दूरी वध तो वध दूरी तो 3214 किलोमीटर। इस चीज़ को नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट लै लो और इसको अपनी नोटबुक के उपर नोट करो। एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की मुख भूमि का दक्षिणी बिंदु केड़ा है, तो वह अपने को है ये वाला, नाम उसका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। इतने एक इंटरस्टिंग थिंग आने वाली है, तो बैक जाके नोट कर लो, जे नोट नहीं कराया तो आप अगे चलते हैं। इधर देख लो, देखो ये भारत का सब तो दक्षिणी बिंदु आप कराया हमने, ये देखो मैं लाइन ना अगे अगे लैके जा रहा, ये जा रही लाइन अगे अगे चलेगी, लाइन अगे अगे। यदा मतलब जो भी जगह इस तो नीचे होगी वो इस पॉइंट तो भी नीचे होगी, वो इस पॉइंट तो भी नीचे होगी। तो तुम ये जो अपने को ये देख रहे हो छोटे छोटे भाग, ये अपने की हैं, मैं थोड़ा करवा के आया सी कल भारत के केंद्र शासित प्रदेश, उस दे अंदर मैं थोड़ा दसिया सीगा कि लक्षद्वीप ਅਤੇ अंडेमान निकोबार ये की हैं, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये भारत का अपने को एक टैरेटरी है, भारत की जमीन है कि अंडेमान निकोबार। तो ये भाग जो है, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये वाला भाग, तो ये जो भाग है ये भी भारत का भाग होगा बई, ये तो इस तो भी दक्षिण दे विच चला गया, इस तो कन्याकुमारी तो इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट है अपना, जो लक्ष्य अंडेमान निकोबार के अंदर अपने को प्रेजेंट है, वो भारत का सब तो दक्षिणी बिंदु है। नोट करके लिख लो इसनूं, नोट करके भारत का सब तो दक्षिणी बिंदु, भारत का सब तो दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु सब तो दक्षिणी बिंदु जो है वो कित्थे स्थित है, तो उसका की नाम है, उसका नाम है इंदिरा, इंदिरा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही लिखने का, तो कोई गल नहीं, तुसीं नोट नाल दी नाल नोट करते रहो। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कित्थे स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट स्थित है, इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडेमान अते निकोबार, इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडेमान अते निकोबार के अंदर, अंडेमान एंड निकोबार विच स्थित है, अंडेमान अते निकोबार विच स्थित है, निकोबार विच स्थित है। तो नैक्सट जब आप भारत के द्वीप समूह अलग तो टॉपिक करांगे ना, उस दे अंदर आप इस दोबारा फिर रिवाइज करांगे अंडेमान अते निकोबार के बारे। इस नोट करके लिख लो कित्थे स्थित है, ये अंडेमान अते निकोबार दे विच स्थित है। की स्थित है, भारत का सब तो दक्षिणी, देखो भारत की मुख भूमि, ये भारत की मुख भूमि है, भारत की मुख भूमि का दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी, पर सब तो दक्षिणी कित्थे है, ये रहा अपने को तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर ये वाला लक्ष्य अंडेमान अते निकोबार के अंदर अपने को प्रेजेंट है। नैक्सट आप चलते हैं, नैक्सट चलते हैं अपना जो मेन टॉपिक है इंडियाज लैटीट्यूड एंड लॉन्गीट्यूड, यानी कि लैटीट्यूड भारत के अक्षांश, अक्षांश भारत के अक्षांश अते
लॉन्गिट्यूड होंगे आपके को देशांतर। देशांतर ਤਾਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਲੋਬ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲੋਬ ਹੈ, ਗਲੋਬ ਹੈ। ਗਲੋਬ ਕੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰੇਖਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, लैटीट्यूड और अक्षांश। अक्षांश जो अपने को 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, इस नूं बोलिया जाता है भू मध्य रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश नूं बोलिया जाता है भू मध्य रेखा। ये ग्लोब नूं 2 भाग दे विच वंडदी है, ये ग्लोब नूं 2 भाग दे विच वंडदी है। किहड़ी ग्लोब नूं 2 भाग दे विच वंडदी है, तां अपने को ये वाली ये रेखा, ये रेखा किहड़ी सी आप भूमध्य रेखा। इस दे उपर अपने कोल है, इस दे उपर अपने कोल है उत्तरी गोलार्ध और इस दे नीचे अपने कोल है दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि ग्लोब नूं 2 भाग दे विच वंडदी है। सिंपल गल, नॉर्थ एंड साउथ दे विच उपर वाले जिन्ने भी लैटीट्यूड हैं वो की होणगे अपने कोल नॉर्थ वाले, नीचे साउथ वाले। पता किद्दां चलेगा, ये 0 तो बाद आप 1 डिग्री, नैक्सट 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते करते आप पहुँचांगे 90 डिग्री तक। सेम नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6 तक आप कितने पहुँचांगे 90 डिग्री तक। तो इसका पता किद्दां चलेगा, जेकर 90 की गल हो रही साउथ वाला है ਜਾਂ ਇਹ 90 की गल हो रही है नॉर्थ वाला, तो इस दे नाल लिखिया अपन मिलेगा पूरे दे नाल N, नीचे वाली दे नाल लिखिया मिलेगा अपन S। यानी कि 1S, 2S, 90S, 90N, 94, 95। समझ लगी, 5N, 5S, 6N, 6S। ठीक है, 6 डिग्री, 7 डिग्री इस तरह। तो इंडिया के उपर चलते हैं, लेटिया हुई लाइना हैं जिहड़ियां इंडिया भी किते टच करेंगे। ये देख रहे हो, ये रेखा जा रही बिंदुओं वाली रेखा, ये जा रही बिंदुओं वाली रेखा। नंबर कितना लिखा है 36। नीचे देखो ये रेखा जा रही, ये सारा देख रही होगी, ये लाइन ये जा रही, ये वाली। नंबर कितना लिखा है 8। इस दे नाल लिखा N, N सब ये N देख रहे, ये N लिखा। और इस दे नाल भी ऑब्जर्व करो, ये N लिखा। ये N की शो कर रहा है, ये N ये शो कर रहा है कि जिहड़ियां ये रेखावां दिख रही हैं, ये वाली रेखावां दिख रही हैं अपन, ये रेखावां दिख रही हैं, ये वो रेखावां हैं जिहड़ियां 0 डिग्री तो उपर हैं। यानी कि इस दे नीचे अपने को, इस दे नीचे अपने को एक है 0 डिग्री रेखा। तो वो किहड़ी रेखा है, किन्ने डिग्री किन्ने नंबर वाली, जो भारत नूं इत्थे टच करती है, किस नूं टच करती है, उस पॉइंट नूं जिहड़ा दक्षिणी पॉइंट सी किहड़ा सीगा, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो जो अपने इंडिया नूं फस्ट टच करती है 0 डिग्री के उपर, वो है अपने को 8 डिग्री 4 मिनट। नाल की लिखा मिलेगा नॉर्थ, नॉर्थ। ठीक है, उपर जावांगे आप 8 तो बाद 9, 10, 11, ये देख रही 16, 20, ठीक है, 28 ते पहुँच गए, 32 पहुँच गए, 36 ते पहुँच गए, 36 के बाद आप पहुँचेंगे 37 ते, 37 ते। तो इतने आपको एक लाइन मिलेगी 37। ठीक है, 37 के बाद 37.1, 2, 3, 4 इदा करते करते आप पहुँचांगे, ये लिखा ना 37 डिग्री 6 मिनट। तो आप कि रेखा से पहुँचांगे 37.6। और आप उपर कितने पहुँच जाएंगे 37 डिग्री 6 मिनट। यार चल की रहा है, चल रहा है कि ग्लोब के उपर इंडिया नूं फिट करांगे तो ये लेटियां हुई लाइना किहड़ियां इंडिया नूं टच करनगियां, टच तो बहुत करनगियां। लास्ट वाली किहड़ी होवेगी, लास्ट वाली किहड़ी होवेगी, और बिल्कुल स्टार्टिंग वाली किहड़ी होवेगी। यानी कि इत्थे किहड़ी रेखा होवेगी, आपां नूं कलर में चेंज करके तुहानूं दसदा। तो सपोज कर लो तुसीं इत्थे चले गए, आप ये लाइन अपने कोल है 8 डिग्री, 0 तो बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पहुँचे आप 8 डिग्री ते, 8 डिग्री 4 मिनट। उपर गए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 करते करते आप पहुँचेंगे 37 ते। और 37 के बाद कुछ पॉइंटा से पहुँचेंगे 37.6 ते, 37 डिग्री 6 मिनट से। तो आप सपोज करो इतने पहुँच गए 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो अपना जो इंडिया है ये किहड़ी 2 रेखावां दे विच प्रेजेंट है, तो 37.6 डिग्री लैटीट्यूड या अक्षांश और
8 डिग्री 4 मिनट लैटीट्यूड अक्षांश। इस नूं आराम दे नाल समझ के एक बारी नोट कर लो, फिर आपां अगे चलते हैं और इस नूं आपां रिपीट करते हैं दोबारा। एक बारी थोड़ा ऑब्जर्व कर लो चीज़ों नूं, उस बाद आपां अगे चलते हैं। ठीक है, रफ करके दोबारा दस दे आपां। इधर देखो, ਇਹਦਾ मतलब ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ को ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ੀ ਵਿਸਤਾਰ लैटीट्यूडल एक्सटेंड अक्षांशी विस्तार की है। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आएगा यार, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अक्षांशी विस्तार, बस बैठ के आराम के लैक्चर में ध्यान देना सुनियो, तो जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सारे निकल जाएंगे, जो भी इतों क्वेश्चन आएंगे। विस्तार की है तो अपन ने देखा अक्षांशी विस्तार की है कितों शुरू हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट तो, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तो लैके कित्थे तक जा रहा है, ये रहा 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो 37 डिग्री 6 मिनट तक जा रहा है, यानी कि ये वाला भारत का की हो गया दखन दे विच, ये भारत दे कित्थे हो गया उत्तर दे विच। यानी कि जो 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट है, तुसी कमेंट दे विच आप तुसी मैंशन करो कि 8 डिग्री 4 मिनट के उपर किहड़ा स्थान है जिसनूं टच करता है, किहड़ा स्थान है, स्थान ये तुसी कमेंट दे विच दसना है, किहड़ा स्थान। सैंती डिग्री 6 मिनट किस स्थान को टच करेगा, किस राज जां यूटी, यूटी का मतलब यूनियन टैरेटरी, किस यूटी को टच करेगा, यूटी नूं छूहेगा। ठीक है, ये इसलिए तुसीं आंसर देना है इसका, जेकर कल की क्लास के अंदर आप इसनूं करवा देंगे। ठीक है, इसनूं नोट कर लो। तो इत्थे तुसीं देखिया कि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री तक, 8 डिग्री 4 मिनट तो 37 डिग्री तक किन्ने किलोमीटर अपने को दूरी बनेगी, तो की बनेगी दूरी 3214 किलोमीटर। तो सेम थिंग आ गई ना, पिछे करवा के आए सी, यानी कि ये वाला अपने को कन्याकुमारी तो लैके ये वाला अपने को इंदिरा कॉल तक तो दूरी किहड़ी बनी 3214। ये भी क्वेश्चन आ सकता ना, 8 डिग्री 4 मिनट तो 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत के किन्ने किलोमीटर दूरी बनती है, तो 3214। इसनूं नोट कर लो। नैक्सट आप चलते हैं लॉन्गिट्यूड के बाद, लॉन्गिट्यूड के बाद एक ना, ठीक है, करते आप जो अक्षांश है ना, अक्षांश एक अक्षांश है, एक अक्षांश है, ये देख रहे हैं ना, ये दिख रही है लाइन जा रही, ये लाइन दिख रही है वाली, ये भी देखो लेटवी लाइन है ना, लेटवी लाइन है। तो ये किन्ने डिग्री है, इसनूं की बोलिया जाता है, तो ये अपने को है करक रेखा, की है करक रेखा, की है कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो ये किन्ने डिग्री वाली कर्क रेखा है, तो ये अपने को 23.5 डिग्री की आएगा, नाल इसने नॉर्थ 23.5 डिग्री। देखो जीरो सी ना, 0 1 2 3 4 5, कोई ना कोई विचों रेखा आएगी जिसका नंबर होगा 23 और 24 के विचाले एक रेखा बनेगी जिस रेखा का नंबर होगा 23.5, तो उस रेखा का नाम है कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के बारे की है, तो कर्क रेखा अपने भारत के 8 राज्यों विचों गुजरती है, भारत के 8 राज्यों के विचों गुजरती है, 8 राज्यों के विचों कर्क रेखा गुजरती है। नैक्सट करांगे 8 राज्य किहड़े हैं, तो एक बार इत्थे अपने 8 राज्यों के विचों गुजरती है, 8 राज्यों विचों गुजरती है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपने को कर्क रेखा जा रही है। इस तरह कर्क रेखा जा रही, थोड़ा बहुत डिंगे तो कोई चक्कर नहीं है। ये अपने को की जा रही, कर्क रेखा जा रही है। तो किहड़े किहड़े हैं अपने को, गुजरात 1, राजस्थान 2, MP 3, छत्तीसगढ़ 4,
और झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6 और मिजोरम 7, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। ये अपने को त्रिपुरा, ये अपने को मिजोरम किन्ने 8 राज्यों के होके गुजरती। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो थोड़ा जोड़ा क्लीयर हो जाएगा। नैक्सट देखो, चलते हैं भारत के लॉन्गीट्यूड के उपर। भारत के लॉन्गीट्यूड की हैं, भारत के लॉन्गीट्यूड के, तो भारत के लॉन्गीट्यूड या इसनों आप बोलते हैं देशांतर। भारत का देशांतरा के नाल की संबंध है, देशांतरा के अंदरों भारत को किस तरह देखा, तो देशांतर किहड़े हुंदे हैं अपने को, ये ग्लोब है अपने को लगभग अर्थ। ग्लोब के उपर एक पोल तो शुरू होके दूसरे पोल तक जाने वाली रेखावां नूं अर्ध रेखावां की बोलिया जाता है देशांतर। ये अपने को ग्लोब इस तरह जोड़े मिलेंगे, ये अपने को की मिलेंगे देशांतर। अपना नैक्सट अगे आप क्लास के अंदर अलग तो करांगे ग्लोब के अंदर लैटीट्यूड एंड लॉन्गीट्यूड नूं बड़ा डिटेल दे विच करांगे, किन्ने हुंदे हैं, किद्दां मैजर करते हैं। आपां जिहड़ा नैक्सट लैक्चर के अंदर करांगे, नैक्सट लैक्चर नहीं इंडिया जियोग्राफी करन तो बाद इसनों आप करांगे। तब उन्नी देर तक आप जिहड़ा है अपना समझण जोगा आपां नूं जिथे पता चल जाएगा, जिन्ना आपां समझना अपने काम आ जाएगा। ठीक है, देखो तो लॉन्गीट्यूड एक्सटेंड की खड़मियाँ लेना। देखो ग्लोब के उपर एक मिनट अपना इंडिया के उपर इतने लैके चलते, इतने दसदे थोड़ा इधर देखो, ये अपने को पूरा ग्लोब इतने जा रही है अपने को 0 डिग्री भूमध्य रेखा ग्लोब वाली, ये जा रही है अपने को 0 डिग्री। ठीक है, इतने भारत के अपने को, इतने भारत के अपने को 8 राज्यों के विचों जा रही है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है, ये वाली अपने को रेखा सी, ये वाली अपने को एक रेखा इस तरह जा रही थी जिसका मुल सीगा 8 डिग्री 4 मिनट। और इस तरह सेम इस उपर एक बन रहा है अपने को जम्मू कश्मीर वाला एरिया, तो जम्मू कश्मीर के विच जा रही थी जिसका मुल सीगा अपने को 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। नीचे वाला 8 डिग्री 4 मिनट। ये सी अपने को जड़ियाँ रेखावां लेटमिया रेखावां सीगा। हुण ग्लोब के उपर बई इस तरह अपने को ग्लोब है इस तरह, ठीक है, 0 डिग्री 0 डिग्री के इधर अपने को 1 डिग्री, अगे 2 डिग्री, ठीक है, अगे 3 डिग्री, अगे 4 डिग्री, अगे 5 डिग्री। ठीक है, ये अपने को 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। इधर देखो अगेन 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इदा अपने को चलती जाएगी ना रेखावां ग्लोब के उपर। तो इंडिया के इतने गुजरात में टच करेगी एक रेखा, इंडिया के इतने गुजरात में टच करेगी एक रेखा, भी वो भी कुछ डिग्री होगी। आप चले गए इतने अरुणाचल प्रदेश के, इतने अरुणाचल इतने भी एक रेखा टच करेगी इंडिया में, इतने भी एक रेखा टच करेगी। तो वो किन्ने किन्ने डिग्री हैं आप करन लगे हाँ, वो किन्ने किन्ने डिग्री आप करन लगे हाँ। तो देखो ये जी अपने को ये वाली होगी ना, ये होगी अपने को 97 डिग्री 25 मिनट। और जी ये टच कर रही थी ना गुजरात वाली, ये वाली ये है अपने को 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। देखो हम तुम थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हो रही होगी थोड़ा थोड़ा कि ये अपने को केड़ी सी कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाली भारत 8 राज्यों में लंघदी। ये नीचे वाली जी टच कर रही थी 8 डिग्री 4 मिनट की सी अपने को अक्षांश, ये 37 डिग्री वाला भी की अक्षांश। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖੜਵੀਆਂ ਲੈਣਾ ना ये अपने को देशांतर। तो अपन अपने इंडिया के उपर आते हैं तो देशांतर ये लेना, इन्होंने अंदर मैं मैप में बनाया सीगा। इतने आप देखते हैं ये गुजरात वाली ना, गुजरात वाली ये वाली देशांतर, ये वाली देशांतर। तो ये वाली अपने को किन्ने डिग्री है, ये है अपने को 68 डिग्री, 68 देख रहे हैं ना 68, यही 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और ये देख रहे हैं ना 96 डिग्री, ठीक है, इसका मतलब ये 96 डिग्री इस तरह जा रही है। तो अपने को इस तो अगे होगी ना 96 तो, 96 तो अगे, तो 96 तो अगे अपने को कितनी है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो इत्थे आप करते हैं जो अपने भारत का, जो अपने भारत का देशांतरी विस्तार है, जो अपने भारत का देशांतरी विस्तार है, तो वो अपने को की बनेगा, वो अपने को की बनेगा भारत का देशांतरी विस्तार की है भारत का देशांतरी विस्तार की है
तो अपने को बनेगा 68 डिग्री, इतों लैके ना इतों लैके देशांतरी, इतों शुरू हो रहे हैं देशांतर, इस तो देशांतर जा रहे हैं, काफ़ी देशांतर जा रहे हैं। 68 डिग्री 7 मिनट नाल क्या होगा ईस्ट, ये ईस्ट, ईस्ट तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 25 मिनट ईस्ट। ये अपने को की है भारत का देशांतरी विस्तार है, भारत का देशांतरी विस्तार। इसनों नोट कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, भारत का देशांतरी विस्तार की है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक अपन की मिलता है, मिलता अपन भारत का देशांतरी विस्तार। देशांतर की हैं ग्लोब के उपर खड़ियां रेखावां, ग्लोब के उपर खड़ियां रेखावां, ठीक है। इन्होंने लाग तो करांगे, फिलहाल आप इत्थे जिहड़ा इन्हों समझिया। तो उम्मीद है तुसीं इसनों नोट कर लिया होवेगा, इसनों नोट कर लिया होवेगा। तो नैक्सट जिहड़ा आपां अपनी क्लास नूं जिहड़ा इत्थे खत्म करते हैं, एक छोटा जिहा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, वो टॉपिक मैं तुहानूं जिहड़ा करवाउंदा, वो टॉपिक है अपना भारत के उत्तर पश्चिमी राज, गलत लिखा गया सी, वेट, उत्तर पश्चिमी नहीं आ रहा इत्थे, भारत दे उत्तर पूर्वी राज, भारत दे उत्तर पूर्वी राज, भारत के उत्तर पूर्वी राज। तो ਜਿਹੜੇ अपने भारत के उत्तर पूर्वी राज किहड़े होणगे, ये देखो, ये इस तरह अपने को भारत, ये अपने को इस तरह भारत मिलेगा। ये भारत का अपने को उत्तर वाला एरिया, भारत का उत्तर वाला एरिया, ये नीचे अपने को भारत का दक्षिण वाला एरिया। तो जो अपने को सेंटर वाला एरिया किहड़ा बनेगा, ये सेंटर वाला बनेगा, ये अपने को भारत का, इधर नीचे थोड़ा जाओगे तो भारत का अपने को पूर्व वाला एरिया, पूर्व वाला एरिया। तो ये अपने को किहड़ा बनेगा, ये वाला एरिया उत्तर पूर्वी। मैप के उपर देखते तो ये रहा, ये अपने को पूरब, ये अपने को उत्तर, ये सेंटर वाला किहड़ा बनेगा उत्तर पूर्वी। इसलिए इन्हों बोलिया जाता है भारत के उत्तर पूर्वी राज, भारत के उत्तर पूर्वी राज। तो आप इत्थे देखते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज के अंदर, भारत के उत्तर पूर्वी राज के अंदर, ये भारत के उत्तर पूर्वी राज के अंदर किन्ने राज आउंदे हैं। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज दे विच, भारत के उत्तर पूर्वी राज दे विच तां राजां विच 8 राज आउंदे हैं, उत्तर पूर्वी राज दे 8 राज आउंदे हैं। किन्ने राज आउंदे हैं, तो 8 राज आउंदे हैं। इन्हां 8 राजां दे विचों, इन्हां 8 राजां दे विचों ये वाला अपने कोल सिक्किम किहड़ा है, सिक्किम। इन्हां 8 राजां दे विचों सिक्किम नूं छड्ड के जिहड़े अपने कोल ये 7 राज है ना, ये 7 राज, ये वाले 7 राज, इन्हां नूं बोलिया जाता है सैमन सिस्टर्स। की बोलिया जाता है, सैमन सिस्टर्स। इधर देखो सारे मैप के ऊपर, ये अपने को सिक्किम नूं छड्ड के, सिक्किम नूं छड्ड के जिहड़े अपने कोल ये 7 राज, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो काउंट करते आप 1 2 3 4 5 6 और 7 राज। मेघालय अपने को 7 राज, जिहड़े ये 7 राज हैं, ये अपने को की हैं, यही हैं अपने को सैमन सिस्टर, सैमन सिस्टर। तो याद रखना है सिक्किम जो है, सिक्किम जो है वो सैमन सिस्टर का भाग नहीं है, सिक्किम जो है वो सैमन सिस्टर का भाग नहीं है। तो तुसी इत्थे देख रहे होगे, इत्थे देख रहे हो कि जो अपने भारत के नाल ये सैमन सिस्टर जुड़े हैं, जां ये 8 राज जुड़े हैं, 8 राज जुड़े हैं, ये किस द्वारा जुड़े हैं, तो ये अपने सिर्फ इस छोटे जे इस एरिया द्वारा जुड़े हैं, इन्ने एरिया द्वारा। जेकर ये एरिया इस तो कट हो गया तो भारत की कनैक्टिविटी, भारत की कनैक्टिविटी इन्हां राज्यों के नाल खत्म हो जाएगी। देखो इत्थे तो बांग्लादेश है ना, ये सारा बांग्लादेश रहा, बांग्लादेश। जेकर बांग्लादेश अपने अंदर होंदा फिर तो आप बोलते कि भी सीधा अपने नाल रल रहे हैं, तो अपने नाल इन्हां दी कनैक्टिविटी नहीं हो रही। साफ मैप के उपर देखियो, साफ मैप के उपर ध्यान नाल देखियो, ऑब्जर्व करो इस चीज़ को
कि ये अपने सिर्फ इस एरिया द्वारा जोड़ रहे हैं। ये देखो इतों गए वैस्ट बंगाल, ग्रीन वैस्ट बंगाल तो होंगे ये छोटा एरिया, ये वाला एरिया इस इन्ने एरिया नूं बोलिया जाता है, इस एरिया नूं बोलिया जाता है सिलीगुड़ी गलियारा। सिलीगुड़ी गलियारा। देखो चाइना की हमेशा कोशिश रही है कि असी जिहड़ा है इधर भूटान और सिक्किम के उपर कब्जा करके और इस सिलीगुड़ी एरिया नूं बंद कर दईए, इस उपर अपना कब्जा कर लेंदे आ। चाइना की हमेशा कोशिश रही है जिद्दां ही ये वाला रस्ता ब्लॉक हो जाएगा तो इंडिया की कनैक्टिविटी अपने उत्तर पूर्वी राज्यों के नाल टुट जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश इन्होंने इधरों रस्ता, बांग्लादेश अलग तो रस्ता क्यों देगा, जो रस्ता दे भी देगा तो कोई अपना डायरैक्ट लिंक नहीं रहेगा, आपको परमिशन लैके जाना पवे करेगा, उन्नी फ्रीडम नहीं होगी, आप डायरैक्ट चल जाइए। तो जिद्दां ही ये टुट गया तो चाइना चाहता कि असी इस पूरे के पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के उपर जो अपना अधिकार स्थापित करते हैं। तो इदा की कोई सीन अजे तक नहीं हो रहा, पर उन्होंने कोशिश रही है कि इस सिलीगुड़ी गलियारे जोड़ा है खत्म कराया जाए, मतलब ये उपर कब्जा कराया जाए। इस सिलीगुड़ी का सैकेंड नाम है ना जोड़ा बड़ा इंटरस्टिंग है, वो है चिकन नेक कॉरिडोर। चिकन नेक कॉरिडोर होंगे रस्ता, गलियारा चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक है। चिकन नेक कॉरिडोर ये जो तुसी सर्च करके सैवन सिस्टर्स के बारे, चाहे तुसी इत्थों इन्हां दे नाम लिखियो चाहे अपने अलग तो नाम लिखियो, तो जिहड़ा तुसी असाइनमेंट है जी अपनी इस ये उपर जी अपनी असाइनमेंट है वो तुसी की करना है, वो तुसी इस दे अंदर सैवन सिस्टर के नेम और उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश उत्थे है नहीं कोई, कैपिटल मतलब राजधानियाँ, कैपिटल और राजधानियाँ जिहड़ियां तुसी लिख के अपने नोटबुक के उपर एक दो बार ट्राई करना है कि इन्हां सैवन सिस्टर्स दियां कैपिटल्स राजधानियाँ की हैं और इन्हां दी जिहड़ी अपनी महत्ता की है। देखो इन्हां दी महत्ता की है, जिहड़ा अपने कोल ये मेघालय ना, मेघालय के अंदर संसार की सब तो वध वर्खा होंदी मेघालय के अंदर एक स्थान है जिस स्थान का नाम है अपने को मासिन राम, स्थान का नाम है मासिन राम। देखो कितने भी USA के अंदर, कनेडा के अंदर, जर्मनी के अंदर कितने भी कोई पढ़ रहा होगा, जेकर उसका अंदर क्वेश्चन उन्होंने आ रहा है, क्या क्वेश्चन है कि संसार दे विच सब तो वध वर्खा होने वाला किहड़ा स्थान है, संसार दे विच सब तो वध वर्खा होने वाला, अपनी लैंग्वेज कर रहे होंगे किहड़ा स्थान है, तो भाई वो भी तो मासिन राम पढ़ते होंगे ना। द प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैव हाईएस्ट रेनफॉल, ठीक है, मंग ऑल द वर्ल्ड, तो किहड़ा आएगा अपने को मासिन राम वो प्लेस है, वो स्थान है जिथे संसार की सब तो वध वर्खा होंगी, तो कितने स्थित है मासिन राम के अंदर। तो ये इन्हों की महत्ता है जी आपू एक वर्ल्ड लैवल के उपर इंडिया जोड़ा शो करती है, एक व्यू है जिस दे नाल इंडिया पढ़िया जा सकता है वर्ल्ड लैवल के उपर, लोग पढ़ते होंगे बाहर के देशों वाले, ठीक है। ये अपनी जी क्लास कंप्लीट होंगी, तो उम्मीद है थोनों क्लास अज की पसंद आएगी, अपने जोड़े क्वेश्चन होंगे वो तुसी कमेंट दे विच जरूर दस्सिओ, और अपने व्यूज़ भी कमेंट दे विच तुसी जिहड़ा है अपने देने हैं कि आपां नूं किद्दां होर आपां इस वधिया तरीके दे नाल कर सकते हैं। असीं अपने वालों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुहानूं एक वधिया कंटेंट एक फ्री ऑफ कॉस्ट हर एग्जाम के लिए। देखो ये जियोग्राफी का जो भी पोर्शन जिहड़े भी एग्जाम के अंदर आ रहा है, तो थोड़े सारे क्वेश्चन निकलेंगे हर एग्जाम के अंदर, लगभग 3 तो 4 क्वेश्चन जिहड़े जियोग्राफी के बनते हैं, 3 तो 4 और हो सकता है कि जिद्दां अपनी पॉलिसी चेंज हो रही है, आने वाले समय के अंदर 10 तो 15 क्वेश्चन भी अपन जिहड़े जियोग्राफी के मिल सकते हैं, 10 तो 15 क्वेश्चन जिहड़े इसदे मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपन एक रीजनल जिहड़े अपने लैंग्वेज उस अंदर पढ़ाने का मौका दिता। दूसरा एक टैक्नीकल लैंग्वेज उपर अपना फोकस हो रहा है, एक इंप्लीमेंट जी स्टडी वो उपर हो रहा है, तो ये भी अपना जोड़ा इस अंदर अपना फोकस रहेगा गौरमेंट का हो सकता है। तो अपन जो अपने भारत के बारे सारा पता होना चाहिए, ठीक है। क्लास थैंक यू, इन जी अपनी क्लास कंप्लीट होंगी है, तो मिलते हैं कल
ਸੇਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਓ ਔਰ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।